Hello my friends and my students. Welcome back my YouTube channel Macox Engineering. Today we are studying about numerical problems on chem profile part 1. Myself Jignesh Rana, I am working as an assistant professor in Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Our college is affiliated to Gujarat Technical University, Gandhinagar, Gujarat. Today we draw a chem profile. Okay, so first of all, before start chem draw how to draw chem profile, some basics fundamental knowledge about we have to know about the chems and follower. If you don't know about chems and follower, please refer my previous videos and lecture. Okay, in many engineering applications areas, chem and follower we use in machinery. Okay, so that is a basic some problems we have to draw on a blank page. Okay, so you have to draw a chem profile on blank page in sketchbooks or any notebooks. Okay, so what is the data of the first chem profile? Part number 1. So construct a chem with a minimum radius of 50 mm rotating clockwise at a uniform speed is required to give a knife edge follower. The motion is described below. To move outward through 40 mm during the 100-degree rotation of the chem, to dwell for next 80-degree, to return its starting position during next 90-degree, and to dwell for the rest period of the revolution of 90-degree. Draw the profile of chem when the line of stroke of the follower is passes to the axis of the chem shaft and second offset by 15 mm. The displacement of the follower is to take place with uniform acceleration and uniform retardation. Hello my friends and my students, welcome back my YouTube channel Macox Engineering. Today we have studied a chem profile. It means how to draw a chem profile. We know already studied a theory of chems and follower. Okay, we have to use many application of chems and follower in IC engine to operate inlet and exhaust valve. So same now here we have to draw chem profile. It means be solving the problems on chem profile. Before start the problems of chem profile, I have to draw on chem profile on whiteboard and you have to draw on chem profile in sketchbook or any blank page. Okay, then there are some basic tools are required to draw chem profile: pencil, rubber, sharpener, protector, divider, roller scale and divider, etc, etc, etc. Okay, now we start a chem profile. Okay, so what is the data? A constructor came with a minimum radius of 50 mm rotating clockwise at uniform speed is required to give a knife edge follower the motion as described. The number 1 to move outwards through 40 mm during 100-degree rotation of cam. Then next to dwell for next 80-degree. Then third to return its starting position during the next 90-degree and to dwell for the rest period for the revolution of 90-degree. Draw the profile of cam when the line of stroke of the follower is passes through the axis of the cam shaft, and the second one is the line of stroke of the follower is passes through the line of stroke is far away 15 mm offset from the axis of the cam shaft. The displacement of the follower to take place with uniform acceleration and a uniform retardation. So this is the data of the chem profile. Now, what is given in the basic fundamental given? So, first of construct a chem with minimum radius of 50 mm. It means a base circle radius is 50 mm. Then, to move outward through 40 mm, it means the follower lift is given. Follower lift is given or stroke of the follower as 40 mm. Then next, to move outward through 40 mm during the 100-degree rotation of the cam, यानी कि 100-degree outward stroke, right strokes, okay, forward strokes, and at that time follower take place motion, uniform acceleration and retardation. Then next 80-degree followers have no movement. It means dwell period. Okay, 80 degrees dwell period. Then next follower moves its starting position
इट मींस 90 डिग्री अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री में हमारा फॉलोवर ओरिजिनल पोजीशन फिर से वो आ जाएगा और वहां पे भी सेम मोशन और टेक प्लेस कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, एंड अगेन नेक्स्ट इज 90 डिग्री रोटेशन. Okay, so before start the problems I have one notice here. There are two in one came profile, there are two problems are given. Number one is the line of stroke of the follower pass to the axis of the camshaft, and second one is offset by 15 mm. यानी कि जो हमें पहला प्रॉब्लम दिया गया है वो हमारा रेडियल फॉलोवर है, रेडियल, और दूसरा जो हमें दिया गया है वो ऑफसेट फॉलोवर है. ओके, यानी कि यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा. नंबर वन, पार्ट वन, द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पास टू द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट, एंड सेकंड पार्ट इज द ऑफसेट 15 mm. ओके, यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सेम रहेगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, सिर्फ हमारा कैम प्रोफाइल चेंज होगी. ओके, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सेम रहेगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. So before start the displacement diagram, so on y-axis follower lift S 40 mm, okay, and x-axis theta cam angle. Okay, so let's start. Draw horizontal line OS. First steps, draw a horizontal line OS. OS is equal to 360 डिग्री. अब यहाँ पे हमें स्केल लेना है कि कितना स्केल लेंगे, तो मैंने यहाँ पे एकदम इजी स्केल लिया है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि हम 360 बाई 20 करेंगे. 360 बाई 20 डिग्री, तो क्या मिलेगा हमको, 18 सेंटीमीटर मिलेगा. लेकिन हम यहाँ पे OS कितना ड्रॉ करेंगे, 18 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. ओके, इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, बिकॉज यहाँ पे ड्वेल पीरियड है वो कुछ काम का नहीं है, यानी कि हम इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. ओके, लेकिन जो हम अब ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ड्रॉ कर लीजिए OS लाइन. ओके, अप्रोक्सीमेटली लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यानी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है, 18 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, so first of all हम यहाँ पे क्या करेंगे, to follower moves outward through 100 degree rotation of the cam when the follower movement is 40 mm. Okay, so 100 degree divided by 20 degree, यानी कि हम यहाँ पे स्केल लेंगे 100 डिग्री by 20 डिग्री, यानी कि 5 सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर इज 100 डिग्री. तो हम यहाँ पे OP, ये जो हमारा पॉइंट है OP 100 डिग्री मींस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. देन PQ 80 डिग्री 20 बाई 80 डिग्री बाई 20, इट मींस 4 सेंटीमीटर. तो हम 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. रिटर्न स्ट्रोक follows moves against original position 90 degree QR. So 90 divided by 20, 4.5 centimeter. 4.5 centimeter. And QD, it means theta dwell, again 90 degree, 4.5 centimeter. Again, there is a not required to measure 4.5 centimeter. So this theta D, PQ and RS not measure perfectly. There is nothing problem. Okay, if you confused, we have to draw a 4 centimeter. You can draw 4 centimeter. Okay. बट इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, सो ये एक बेसिक प्रोसीजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक प्रोसीजर. नाउ फ्रॉम पॉइंट O ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एट S 40 mm एंड मेक अ रेक्टेंगल. ओके, फर्स्ट स्टेज ये आपका ये है, एंगल डिवाइड करना है 6 डिवाइड इक्वल पार्ट में. ओके, देन हमें 40 mm की लेंथ S इज इक्वल टू 40 and make a rectangle. Now, okay, now OP 100 डिग्री, so divide उसको हमको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. Then रिटर्न यानी इसको भी 6 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे 4.5 सेंटीमीटर को.
अब कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि यहाँ कहाँ पे इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट ईयर इक्वल पार्ट मैटर, ये हमें लाइन दी है 5 सेंटीमीटर, इसके हमें 6 इक्वल पार्ट करने हैं। कैसे करेंगे? तो हम ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, साइड पे हम ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन, फिर इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट रख लेंगे ओपी। ओके, फिर क्या करेंगे, पॉइंट ओ से 30 डिग्री एंगल मेजर करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपने प्रोटेक्टर से ड्रॉ कीजिए, 30 डिग्री आप मेजर करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम डिवाइडर लेंगे और पेंसिल के साथ क्या करेंगे, रैंडमली रेडियस लेंगे, रैंडमली, नॉट अ मेजर, रैंडमली, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी हम रेडियस ले सकते हैं। ओके, देन मेक सेंटर इज ओ रेडियस, name 1 dash. Now 1 dash is the center, then make a second arm 2 dash, 2 dash is center, and again make a third arm 3 dash and 4 dash, 5 dash and 6 dash. ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अब क्या होगा कि जॉइंट P6 डैश, हम P6 डैश ज्वाइन करेंगे। ओके, now from point 5 dash we have to draw a line parallel to P6 dash. Again concentrate here, what have speak, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए ध्यान लगा के। From point 5 dash draw a parallel line, draw a line parallel to P6 dash। यहाँ का P6 dash हमारा रेफरेंस है। Using your roller scale you have to put a roller scale on P6 dash, then slide over the 0.5 dash and make a line. Same again, then number 1 dash 2 dash, sorry 1 2 3 4 5 and 6. okay, सिंपल हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज और कॉम्प्लेक्स खिचड़ा हो जाएगा। ओके, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है। ये कौन सा मेथड है, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन फर्स्ट ईयर इक्वल पार्ट मेथड। ओके, फिर से भी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, फिर से एक प्रॉब्लम ऐसा रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लिए और ये ड्रॉ किया। आप क्या करेंगे, 0 to 1 मेजर कीजिए, मेक अ 1 आर्म, देन सब पे आर्क मारिए, देन नंबर 1 2 3 4 5 एंड दिस 6, अगेन 6। ओके, ये अगेन 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ड्रॉ करने के इक्वल पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ड्वेल है, ऑल ओवर हमारा एज इट इज रही, मोशन एज इट इज रही। रिटर्न 4.5 सेंटीमीटर, वैसे ही 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 45 mm, 45 mm यानी कि 45 mm डिवाइड बाय 6, so 9 6 are 45, so 9 mm के हम के ऊपर रेडियस मारेंगे, आर्क मारेंगे, 9.9 mm की रेडियस पर हम आर्क मारेंगे। ओके, जो मैंने पहले से बना दिया है। ओके, सो यहाँ पे हम 7 8 9 10 11 and 12, and again this is not need to divide 6 equal part. Okay, now from point 1 we have to draw a vertical line. So this is a very important question for exam point of view. At least 7 marks asking. Okay, 7 marks के प्रॉब्लम में हमको
ओके, चलो तो अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हमने वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब क्या करेंगे, यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। सो इन एक्सीलरेशन वी हैव टू divide equal part at mid stroke of the follower at rise and mid stroke of the follower at return। यानी कि 3 पॉइंट और 9 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम उसके 6 इक्वल पार्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे हमें कितना है 40 mm, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसके 6 इक्वल पार्ट करेंगे, यानी कि हम 40 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 30 डिग्री एंगल के ऊपर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके रैंडमली हम रेडियस लेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश, देन जॉइन 6 डैश। ओके, फिर वैसा ही हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने आपको पहले से भी सिखाया है। सेम प्रॉब्लम वैसा ही करेंगे, यानी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमारा कितना है 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन है। ओके, सो वैसे ही हम मेजर करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 0 1 मेजर कीजिए और यहाँ पे 3 पॉइंट पे रखिए, मेक अ 1 आर्म, दैट 2 आर्म, 3 4 एंड 5। ओके, सेम यहाँ पे भी वैसे ही। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash and 6 dash। okay, same here 6 dash 7 dash 8 dash 9 dash 10 dash 11 dash and 12 dash। then next join O1 dash, then join O2 dash, then join O3 dash, and then next here ओके, हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमने पहले भी सीखा है, अगर आपको नहीं मालूम तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमने अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ड्यूरिंग आउटवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक लाइक दिस। ओके, नाउ मेक अ पॉइंट। अब हम पॉइंट कैसे बनाएंगे, तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है O1 डैश की लाइन 1 में कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ और सुनिए। O1 डैश की इंटरसेक्टिंग लाइन A1 पे कहाँ हो रही है, कहाँ इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे। O2 डैश की 2 के लाइन पे कहाँ हो रही है, O3 डैश की लाइन कहाँ हो रही है। सेम वे 4 और 4 डैश 5 एंड 5 डैश 6 एंड 6 डैश। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है उसमें। ओके, सो बेसिकली सिंपल प्रॉब्लम है। चलो फिर वहां पे सेम नंबर, नाउ 7 7 days, 8 8 days, 9 9 days, 10 10 days, 11 11 days and 12 and last 12। नाउ नंबर यार नोटेशन भेजिए, हम इस पॉइंट नोटेशन देंगे, इसे कहेंगे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन। नाउ क्या करेंगे, हम उसको ज्वाइन करेंगे यूजिंग अ स्मूथ फ्री हैंड टूल या यूजिंग अ फ्रेंच टूल।
तो आप जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है अभी यहाँ पे। ओके, तो आपने देख लिया हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैं ये यहाँ पे ये इरेज कर रहा हूँ। Now second step of the cam profile, right? How to draw cam profile. So first of all, we have to draw a base circle. Base circle यानी कि 50 mm की जो हमें रेडियस दी है, ओके, वो हम ड्रॉ करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे 50 mm रेडियस की, एंड उसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम जो हमारे फॉलोवर दिया गया है नाइफ एज फॉलोवर, तो उसका बेसिक स्केच हम ड्रॉ करेंगे। वो रेसिप्रोकल हो रहा है गाइड में, तो ये हमारा गाइड है, ये हमारा नाइफ एज फॉलोवर है। ओके, so now we have to draw cam profile. So first of all, okay, अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया, पहले से डेटा में हमें दिया होगा, क्या दिया होगा कि जो कैम का जो रोटेशन है वो उस डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सो कंस्ट्रक्ट अ कैम विद अ मिनिमम रेडियस ऑफ 50 mm rotating clockwise at uniform speed is required to give a knife edge follower. अब यहाँ पे हम पहले से बोला गया है कि रोटेटिंग क्लॉकवाइज, यानी कि हम यहाँ पे दिखाएंगे कि रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो अब मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, लिसन केयरफुली, इफ इन द गिवन प्रॉब्लम्स the cam is rotation in clockwise direction, then you must draw a cam profile in anti-clockwise direction. यानी कि हमें कैम रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ कर हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो हम कहां से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, अपोजिट टू कैम रोटेशन। ओके, अगर हमें प्रॉब्लम में दिया गया है कि भाई कैम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम कैम प्रोफाइल कहां पे ड्रॉ करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों वाइस वर्सा है। अगेन, if the cam rotation in clockwise direction, then we have to draw a cam profile in anti-clockwise direction. Okay, so now first of all make a cam angle। यहाँ पे हम cam angle बनाएंगे। so पहला कितना है 100, तो ये हमें 90, आप प्रोटेक्टर से मेजर कीजिए 100, यानी कि ये मेरा यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली। देन नेक्स्ट कितना है 80, 180, यानी कि यहाँ पे आएगा सेंटर लाइन पे। देन नेक्स्ट 90, तो सीधा यहाँ पे आएगा 90। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे इसके 6 इक्वल पार्ट किए हैं, वैसे ही हमें थीटा ओ और थीटा आर यहाँ पे हम नोटेशन देंगे। थीटा ओ 100 डिग्री एंड थीटा आर 90 डिग्री। then theta O or theta D 90 degree, and again this is theta D 80 degree। so हमें फिर से एंगल 100 और 9 यानी कि रिटर्न राइट और रिटर्न के हम फिर से 6 इक्वल पार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। 100 का 6 इक्वल पार्ट 16.66 डिग्री। ओके, सो आप एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं 16.6 और 16.5, आप यानी कि 16 और 17 के बीच में ले सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ये ड्राइंग प्रॉब्लम है, थोड़ी सी एरर आएगी तो आपके इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपके इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 16.5 या 16 और 17 के बीच में आप पॉइंट बना सकते हैं। ओके, तो दिक्कत नहीं आएगी इतनी।
चलो तो हम इसके 6 इक्वल पार्ट करेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर। मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ करूँ, आप प्रोटेक्टर से कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इसके उस पॉइंट के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे जैसे हमारा पॉइंट बढ़ेगा बढ़ेगा वैसे ही हम उसके क्या करेंगे, लाइन ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। ओके, देन हम नोटेशन देंगे वैसे ही जैसे हमें यहाँ पे लिया है। ओके, तो यहाँ पे ओ है 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे पी पॉइंट लगाया। देन ये पॉइंट क्यू और 6 ही हम देंगे। अब हम यहाँ पे इसके इक्वल पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज फॉलोवर at least this angle 80 degree angle is stable and zero movement. Now return में भी अब सिंपल 90 डिग्री के 6 इक्वल पार्ट करने हैं। 90 by 6 15 डिग्री। ओके, चलो। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बेस सर्कल था हमारा, हंड्रेड mm का डायमीटर का हमने ड्रॉ किया। फिर इसके हम क्या किया, हमने एंगल नोट किए 100 80 90 एंड 90। देन हमने क्या किया, इसके 6 इक्वल पार्ट किए। ओके, 100 by 6 90 by 6। ओके, फिर हम उस पॉइंट में से हमने क्या किया, हमने लाइन ड्रॉ की। ओके, वी हैव टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, देन मेक अ लेबल 1 2 6 PQ 6। नाउ Q R and OS यहाँ पे फिर से आ रहा है। ओके, सो हम 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना डिवाइडर लेंगे और क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वी हैव टू मेजर 1A and on the cane profile 1 is the center and make a radius 1A, 2B 3C 4D 5E 6F, okay, same 6G 7H 8I, then 9J 9J, then 10K, then 11L and this is the M, वहां पर सिंपल पॉइंट। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे पॉइंट A B C D E F G H I J K L M and this point N। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम फ्रॉम पॉइंट O हम कर्व ड्रॉ करेंगे। हम इसके जितने भी पॉइंट हम बनाए उसमें से ये कर्व हम फ्री हैंड और यूजिंग अ फ्रेंच कर्व।
Okay, so this is your, okay, so cam rotation, rise, dwell, return and dwell, and this is your cam profile. Okay, सब बहुत ही सिंपल है. ओके, बहुत ही सिंपल फॉलोअर सिंपल स्टेप से, और एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रॉब्लम है. आप परफेक्टली आप ड्रॉ करेंगे. अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आप मिनिमम उसको टाइम में हम ड्रॉ करेंगे. आप यहाँ पे हमारा टाइम आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है. तो जब आप पहली बार ट्राई करेंगे तो हमें 1 घंटा भी लगेगा स्केचबुक में लगेगा, क्योंकि हम पहली बार ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि हम ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, इरेजर का यूज़ ज़्यादा करेंगे जो हम बहुत ही हमको अच्छे से आता है. ओके, सो वैसा नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से कीजिए, सिंपल तरीके से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी. इज अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रॉब्लम्स. ओके, आई होप यू गेट वेरी वेल. ओके, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. रेडियल फॉलोअर का लाइन ऑफ स्टॉक फॉलोअर पास टू द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट, यानी कि जो फॉलोअर की एक्सिस है और कैमशाफ्ट की एक्सिस दोनों एक ही लाइन में पास हो रही है. ओके, अब हम दूसरा प्रॉब्लम है जो हम द लाइन ऑफ स्टॉक ऑफ द फॉलोअर फार अवे 15 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट, वो हमारा दूसरा पार्ट होगा, वो अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. स्टे होम एंड स्टे सेफ. Hello my friends and my students, welcome back my YouTube channel Macrox Engineering. Today I am studying, we have studied to cam profile. In previous video lecture we have to draw cam profile. A line of stroke of the follower is passed through the axis of the camshaft. Now the second part is the line of the stroke of the follower is offset 15 mm from the axis of the camshaft. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ किया जाए, हाउ टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. प्रॉब्लम वही है, सिर्फ दूसरा पार्ट कौन सा है, यहाँ के 15 mm इज ऑफसेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम प्रॉब्लम. बिफोर स्टार्ट अ प्रॉब्लम अगेन आई कैन शेयर डेटा. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द डेटा, द कंस्ट्रक्ट अ कैम with a minimum radius of 50 mm rotating clockwise at a minimum speed is required to give a knife edge follower the motion as described below. Number 1, to move outwards to 40 mm during 100 degree rotation cam. Second, to dwell for next 80 degree. Third, to retain its original position during next 90 degree. And fourth, to dwell rest period or revolution of 90 degree. Draw the profile of a cam when the line of stroke of follower is number 1 passes to the axis of a camshaft, and second one is offset by 15 mm. And the displacement of the follower take place with uniform acceleration and retardation. तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में हमने सीखा था कि लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज पासेस टू द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट. ओके, तो वो हमने पहले से वीडियो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था. नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अ लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 15 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट. ओके, सो द डेटा इज सेम. बेस सर्कल रेडियस 50 mm, stroke of the lift of the follower 40 mm, angle of outstroke forward strokes 100 degree, and take place follower motion uniform acceleration retardation UNR, and dwell next 80 degree, return original position 90 degree, uniform acceleration retardation, and retardation 90 degree. Okay, offset 15 mm. Scale we have to take 1 centimeter is 20 degree. Okay, then OS is the 360 degree, so we convert into centimeters upon 20 degree 18 centimeter. So we have to draw O is 18 centimeters. Okay, then next theta of 100 degree, it means OP is a 5 centimeters. Okay, then theta D 80 degree PQ 4 centimeters. Theta 90 by 6, so 4.5 centimeters. Okay, and theta D 90 are again 4.5 centimeters. So first of all we have to draw OP, PQ, QR and RS. Then after we can divide it in 6 equal part. For rise it means theta O and theta R. It means outward stroke and return stroke. Okay. Then next
For UNR, uniform acceleration retardation, so mid-stroke of the follower at rise and mid-stroke of the follower at return. We have to divide again 6 equal parts. जितने पार्ट हम इसके की उतने ही पार्ट इसके वर्टिकल हम करेंगे. ओके, मैंने आपको सिखाया था इक्वल पार्ट वगैरह कैसे करेंगे. ओके, मैंने आपको पहले से सिखाया था दोनों के. ओके, सो वैसे ही करना है इसमें भी सेम. ओके, देन आफ्टर we have to 6 equal part one side, then after we join O1 dash, O2 dash, O3 dash, then return 5 dash, 4 dash, 6 dash. Okay, then we have to do, when we have to make a point intersecting point 1 dash and 1 intersecting point 1, 2 dash and 2, 3 dash and 3, 4 dash and 4, 5 dash and 5, and 6 dash and 6. Same again, 7 dash and 7, 8 dash and 8 dash, 9 dash, 10 dash, 11 dash, and 12 dash. Okay, so basically simple है. Then make a name label A B C D E F G H I J K L M N. Okay, then after we draw smooth curve by freehand curve या using a French curve. Okay, and make a curve. So this is your displacement diagram. Okay, so now we have to draw a cave profile. So again, then make a center line, then we have to draw knife edge follower. अब यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे. क्या पे ड्रॉ करेंगे? Because the knife follower axis is passes through the 15 mm from the axis of the camshaft. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 15 mm हम मेजर करेंगे. Okay, so this is your axis of the camshaft. Okay, knife edge follower. So this is your axis of the camshaft. Okay. Okay. So next we have to draw a offset circle. Okay, 15 mm circle का हम circle draw करेंगे. Okay. Then next after we join a center point of the camshaft and tip of the follower. Okay, इसको हम dotted line से हम करेंगे. अब जो हमें एंगल मेजरमेंट करना है वो कहाँ से करेंगे? We have to measure the angle from this line. Okay, आपको यहाँ से करना है. Okay, ऐसे यहाँ से करना है. Okay, so first कितना है? 100. तो आप हमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 100 हो गया approximately. Okay, then after 80 degree dwell, तो ये 90 है, approximately ये यहाँ पे आ जाएगा. इतना तो नहीं आएगा लेकिन इतना जरूर आएगा. ओके, ये हमारा कौन सा हो गया? ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, फिर इसके बाद 90 और ये भी अप्रोक्सीमेटली 90 हो गया. अब इसको मैं इसको रेड पेन से मैं लेबल करता हूँ. देखिए इधर थीटा ओ 100 डिग्री, दिस थीटा टी 80 डिग्री, the theta r written 90 degree, and this is the theta d 90 degree. Okay, now अब हम इसके इक्वल पार्ट करेंगे 100 के. ओके, तो 6 इक्वल पार्ट हम इसके 6 पॉइंट बनाएंगे. कहाँ पे? सर्कल ऑफ द कैमशाफ्ट में. इसके हम इक्वल पार्ट करेंगे. इसके हम लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ डिवाइड करेंगे, यानी कि पॉइंट बनाएंगे.
ओके, सेम इसके 90 डिग्री। ओके, सो हमने ये इक्वल पॉइंट बना दिए। फिर इसको हम लेबल करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ से लेके ड्रॉ करेंगे? पिछले एग्जांपल में हमने सेंटर में से ड्रॉ किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम टेंजेंट बनाएंगे। क्या करेंगे हम? टेंजेंट। कहाँ से टेंजेंट बनाएंगे? मैं स्केल लेके आता हूँ, एक मिनट। ओके, अब क्या करेंगे हम? वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन पासिंग फ्रॉम द एवरी पॉइंट, बट मेक अ टेंजेंट टू द ऑफसेट सर्कल। ऑफसेट सर्कल से हम उसको टेंजेंट बनाएंगे। जैसे ये पॉइंट है और यहाँ पे ऐसा सर्कल से ऐसा रखिए। ओके, वैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट। अब ये सब पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको आर्क लेना है, तो लंबा आर्क आएगा। ओके, सेम वैसे ही यहाँ से एवरी पॉइंट हम मेक अ टेंजेंट। ओके, तो आप यहाँ में देख सकते हैं कि मैंने ये सब किया। आप इसको बहुत ध्यान से एक एक स्टेप समझिए, फिर ड्रॉ कीजिए। ओके, सब पॉइंट हमने क्या किया? पहले पॉइंट बनाया, फिर इसको सब हमने टेंजेंट दिया। ओके, नाउ अगेन we have to draw cam profile. So now from the displacement diagram we are measuring from 1A and make a arc 1A, then second arc and third 3C, then 4D, 5E, 6F, 6F, एंड दिस पॉइंट। ओके, अब क्या करेंगे? हम ये सब पॉइंट को कब बनाएंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। हियर दिस इज ओ एंड दिस इज द O1। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कर्व बनाएंगे। Passes from every point we have to draw, or we have to use freehand curve or using a French curve. Okay, so मैं अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा इसको।
सो ये आपके बन गया। अब हम इसको लेबल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट लेक्चर में लिखा कैम रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज। इफ योर कैम रोटेशन क्लॉकवाइज वी हैव टू ड्रॉ अ कैम प्रोफाइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, base circle diameter is 100 mm. This is the offset circle. Diameter 30 mm. So cam profile. Okay. Map is follower. तो बहुत ही सिंपल एंड इजी है। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ कैम सर्कल, देन आफ्टर वी हैव टू मेजर 15 mm फ्रॉम द axis of the cam shaft on right side. Okay, then we have to draw a offset circle, then join O1 O. Okay, for our tips or cam of the axis shaft, axis center, cam shaft का सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे, वहां से हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो फर्स्ट 100 and 80, then after 90, then after 90. So rise, dwell, return, dwell. Okay. Then next what after? अब हम क्या करेंगे? हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। Okay. So 100 के 6 इक्वल पार्ट करेंगे हम। Okay. And after dwell, and after 90 के 6 इक्वल पार्ट करेंगे। अब वहां से हम क्या करेंगे? उस पॉइंट में से क्या करेंगे? We have to draw a line, but coincident tangent to offset circle. We have to line draw tangent to offset circle. हम tangent बनाएंगे offset circle से। So one from यहाँ से हम 1 में पास 2, 3, 4, 5 up to 12 पॉइंट, यहाँ से सब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे? फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वी हैव टू मेजर 1a यूजिंग द डिवाइडर। हम डिवाइडर यूज करेंगे, 1 मेजर करेंगे और फिर पॉइंट 1 पे रखेंगे, पुट द पॉइंट 1 एंड मेक r 2, 3, 4, d, 5e, 6f, 6g, 7h, 8i, 9k, 10k, 11l and 12l। जैसे ये सेम पॉइंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन आफ्टर मेक अ सिंपल फ्री हैंड स्मूथ कर्व यूजिंग अ फ्रेंच कर्व या फ्री हैंड कर्व। ओके, then so your problem is complete, only the changes is offset. Okay, so follower same है, procedure same है। Okay, so now you will get very well and keep practice very well. As the more if practice is compulsory, because एग्जाम में आपको ये इजी भी लगेगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है आप जितना सोच रहे हो। एग्जाम में जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके मिनिमम आप 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, सो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ब्लैंक पेज में या अपने नोटबुक के पेज में या ब्लैंक पेज में। ओके, सो कीप प्रैक्टिस। ओके, देन आफ्टर you will complete in minimum in 10, 12 to 15 मिनट्स। आपको मिनिमम 12 to 15 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू गेट वेल, गेटिंग इट। Okay, thank you. Let me stay home, stay safe.